तो नए नए बिजनेस एवरी फ्राइडे एट 4 बजे हम एक नई बिजनेस आइडिया के साथ, जो आइडियाज प्लग एंड प्ले हो सकती है या इंडिपेंडेंट आइडियाज हो सकती है, मगर एक मेंटोरिंग की आवश्यकता है। तो ऐसे मेंटोर और ऐसे बिजनेस आइडियाज जो वर्केबल हो, जो वायबल हो, जो प्रॉफिटेबल हो, तो यह ध्यान में रखते हुए यह हमने लास्ट ईयर, यानी कि ये कोरोना ईयर के पहले वाले ईयर हमने बहुत सारे फिजिकल प्रोग्राम किए, मगर इस कोरोना ईयर में हम दोनों मोड, वर्चुअल एंड फिजिकल, अभी मैं बेंगलोर गया था, तो बेंगलोर में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टैंड अप इंडिया को लेके हुआ, जिसमें IIFT जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी तंजावुर में, तो वहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर अनंत रामाकृष्णन, वो आए थे और उन्होंने, उनके इंस्टीट्यूट ने जो फूड प्रोसेसिंग में जो पेटेंट लिए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं, तो उसका वहाँ प्रेजेंटेशन हुआ। तो लगातार ये हमारी कोशिश है कि फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, फिशरीज हो, एग्री बेस्ड बिजनेसेस हो, से लेके बहुत सारे जो बिजनेस सेक्टर्स है, रिटेल वाले बिजनेसेस हो, इसमें इस SC ST यूथ को कैसे फैसिलिटेट करे, कैसे हैंड होल्ड करे, ताकि वह इंडिपेंडेंट बने और वह आत्मनिर्भर कैसे बने, इस कोशिश को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय मैं अभी इतनी ही बात कह के मेरे वाणी को विराम देता हूं, और गौतम, आप प्लीज गो अहेड। Thank you, Chairman sir. Before we move ahead, may I request Ms. Maitri come. Maitri ji, please. Yes, thank you so much, Gautam sir. Am I audible? Yes, ma'am. Great. So as our founder chairman has already shared the importance of this program and the success it has got, I'm happy to see that today we've crossed 75 members within 10 minutes of our program, and still a lot of people are joining. This is indeed a platform for new business opportunities. It is a great way to work in the era of pandemic, and a very steady and stable platform for everyone. Anyone can join and see a new opportunity. So that is one thing. Today we have a very expertised person in food and food processing industry. I would like to introduce everyone with Mr. Atul Mardikar sir. He is expert in food processing field. He has experience in food processing for more than 35 years now. He has been actively researching about different post harvesting food processing methods and different vegetables, different products for more than 16 years, and he has been awarded with the title of father of dehydration by Association of Food and Food Scientists and Technology India. And he's also CEO of Udyog Prerna magazine, which is into agriculture and food processing business opportunities. I think this is a great opportunity for everyone today to talk to Mr. Madikar sir and get to know about his model on dehydration unit. So I welcome Atul sir. Welcome to our program, and please, uh, this will be very honorable for us to hear few words. Thank you so much. Thank you, Maitri.
I'm very much thankful to invite me to share my experience with you. First of all, I'm giving our lot of best wishes to Sidbi on their foundation day. Another thing, I'm very much thankful for Dicky to invite me, and I will now start sharing my experience on this topic, that is post harvest processing and food processing. See, in the time of 30 minutes, I am going to enlighten 3 to 4 major points in front of you. Number one, I am explaining the area of post harvest processing and how it is linked with our livelihood, with our economy, and with our exports. Number two, what are the technologies available for post harvest processing and food processing? And third one, I am elaborating one innovative and very potential model to empower youths, rural and urban, with the help of this post harvest technology. And then, of course, as per your request and time given, we can. I am open for question and answers. So I am coming towards the introduction part of this topic. See, India is our country and it is a blessed country by nature. We have some major specialities offered by nature. Number one, our country is blessed by sun. We have round the year sunlight available. So many people don't aware okay, how it is possible or what is the new in this. See, there are some countries, if you see our earth map, there are 35% countries, only 6 months sunlight is available. And sunlight is the major resource to make photosynthesis by plants to prepare food. So our country is a blessed country by sun and nature. Our plants are creating round the year food for human being and for themselves. Number two, if you travel from Kanyakumari to Kashmir and from Tawang to Kutch, see, wide geographical diversity is our another specialty. All climatic zones available on the earth are available in our country. All type of soils on the earth are available in our country. That's why we can cultivate any crop on the earth in our country. For example, if you see, grape is not our own original crop, but in the international grape market, India is making its footprint. Like that, nowadays, parsley, broccoli, chives, then lettuce, these are not our original vegetables. These are from Middle East and Europe. But our farmers are now expertise in all these exotic vegetables and we are exporting, we are processing in a huge quantity. So this is our second specialty. Third specialty of our country is we are having tropical environment. And tropical environment is nothing but tropical environment. We have 3 seasons in our country: rainy season, winter season, and summer. With this tropical environment, the best thing what we available is aroma to our horticulture products. Just now I got one suggestion that I have to use bilingual. It is English, Hindi. Is it okay? So uh, aroma is a very unique selling point of our horticulture produce.
if we compare our Alfonso with the help of Chinese mango or Chile's mango or Brazilian mango, Alfonso itself has its unique feature, aroma and color. But unfortunately आज तक हमने कभी भी सेल ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस विथ अरोमा ऐसा नहीं किया है. So this is another opportunity or specialty of our country. And the fourth one, rain percentage. With compared to so many countries, we are having sufficient rains. The problem is water management. So with this background, हमारे कंट्री के लिए नेचर ने बहुत सारा कुछ दिया गया है और हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रोग्रेस है वो भी आपको फिर एक बार मुझे दोहराना है. 1947 में हमारा कंट्री फूड इंपोर्टिंग कंट्री था. Those are senior persons from Maharashtra. 1971-72 का ड्रॉट आपको शायद पता रहेगा कितना चेंजेस सोशल इंजीनियरिंग में हुआ है एट द टाइम ऑफ 1971-72 का ड्रॉट्स में. एंड nowadays today it is 2021. India is the major player in the food processing and agri processing sector. आज we are number one in meat processing, vegetable processing, spices cultivation and production. So बहुत सारे एग्रो प्रोड्यूस में we are either 1 or 2 or 3. ये प्रोग्रेस हमारी लास्ट 25 years की हुई है. एंड if we see the statistics, 60 to 65% of population of our country is directly or indirectly connected with agriculture economy. हमारी सारी जड़ें आज भी एग्रीकल्चर में है. आप देखिए सिंपल चीज है, इफ द फोरकास्ट ऑफ मानसून इज सेटिस्फैक्टरी अप टू 98-99%, इमीडिएटली हमारा शेयर मार्केट ऊपर जाता है. इतना हमारे कंट्री के इकोनॉमी में एग्री प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर का, एग्री बिजनेस का प्रभाव है. और if we consider the investment in agri business sector, आप agri business का nowadays we are working on one government project only. 1 हेक्टर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस डेवलप करने के लिए हमें 2 लाख रुपया ज्यादा से ज्यादा खर्चा आता है. ये by investing 2 lakhs we can create at least 20 direct jobs, डायरेक्ट 20 एम्प्लॉयमेंट, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की संख्या जो है वो कम से कम और 20 की है. तो इस करके एग्री बिजनेस इज द इमर्जिंग सेक्टर इन नेक्स्ट डिकेड और नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स. यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए जब बात करनी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म एग्री बिजनेस. Agribusiness is a very wide spectrum term जिसके 4 pillars है. First pillar is backward linkage, and backward linkage का जो scope है it is from pre-cultivation up to harvesting. मतलब खेत तैयार करना है, खेत में सीड लगाना है, उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है, इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट करना है, पानी देना है, हार्वेस्टिंग की तरफ लेके आना है. So this is the phase 1 which is known as backward linkage. Then it comes to post harvest. मतलब जो भी हार्वेस्टिंग के बाद सीरियल रहेगा, पल्सेस रहेगा, ऑयल सीड्स रहेगा, फ्लावर रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगा, स्पाइसेस रहेगा, एवरीथिंग इट कम टू पोस्ट हार्वेस्ट सेक्शन. एंड ये पोस्ट हार्वेस्ट सेक्शन में प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग एंड टर्शरी प्रोसेसिंग, ये 3 चीजें आती है.
उसमें से सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोसेसिंग को हम लोग फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड पोस्ट हार्वेस्ट में पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, ये सेकंड पिलर है पोस्ट हार्वेस्ट एग्री बिजनेस कंसेप्ट का। थर्ड पिलर जो है इट इज फूड प्रोसेसिंग, जहां पे देयर आर अगेन so many verticals or so many big spectrum: traditional food, functional food, beverages, confectionery, bakery and so many others. And the fourth pillar of agribusiness is forward integration, that is जो भी माल तैयार हो रहा है वो कंज्यूमर की एंड पे लेके जाना है, उसके लिए एक सिस्टमैटिक चेन चाहिए, सप्लाई चेन चाहिए, एंड दैट इज द फोर्थ पिलर। कौन सा भी एग्री बेस्ड बिजनेस या फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस, बिकॉज नेक्स्ट डिकेड में हमें क्या समझ के लेना चाहिए, व्हाट कंज्यूमर एक्सपेक्ट, व्हाट इज कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। उद्योग प्रेरणा की बेसिक फिलोसॉफी ये है कि व्हाट पीपल और व्हाट मार्केट रिक्वायर दैट यू हैव टू सप्लाई, देन ओनली यू विल गेट कमर्शियल सक्सेस। और उसके लिए नेक्स्ट 10 साल की 20 साल की रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट पोस्ट हार्वेस्ट और फूड प्रोसेसिंग के एंगल से, दैट इज नंबर 1, व्हाट कंज्यूमर रिक्वायर्ड इज ट्रेसेबिलिटी। व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी? कि आज यदि मैं अल्फांसो मैंगो खा रहा हूं तो मुझे ये समझना चाहिए कि दिस अल्फांसो मैंगो रत्नागिरी के कौन से ऑर्चिड से आया है, कौन से ट्री से आया है, कौन से ब्रांच से आया है, और इसका फ्लावरिंग कब हुआ है, फ्लावरिंग होने के बाद इसको कौन से पेस्टिसाइड दिए गए हैं, इंसेक्टिसाइड कौन से दिए हैं, so that this Alfonso will be the safe food, safe fruit for human consumption. Next 10 साल में 20 साल में this is the concept which consumer expect. और यदि हमने नहीं किया तो हमारा माल नहीं एक्सपोर्ट होगा, ना डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे रेट से बेचा जाएगा। तो ट्रेसेबिलिटी इज नंबर 1 एंड नंबर 2 जो है, you have to ensure the food safety management system of your supply chain, of your agriculture field, of your processing field, because food is either food or poison. आप देखिए खाना जरूरी है, लेकिन खाने के बाद कुछ गड़बड़ हुआ तो that will become poison. हेलो, आ रही आवाज। So फूड इज फूड और पॉइजन। यहाँ पे सेफ फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर आपको ध्यान देना है। इफ वी फोकस ऑन दिस 2 एस्पेक्ट्स, पोस्ट हार्वेस्ट एंड फूड प्रोसेसिंग में देयर आर इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर। See, हमारी कंट्री में nowadays agribusiness sector is as a transition phase. हमारा जो सेक्टर है ट्रांजिशन फेज में है। ट्रांजिशन फेज में मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेजर एग्रो प्रोड्यूस अवेलेबल आर फॉर टेबल यूज वैरायटीज, प्रोसेस कंप्यूटेबल वैरायटी धीरे धीरे आ रही है। हमारा मेजर फार्मर जो है अप टू 70%, 75%, ये फार्मर कम्युनिटी हमारी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। वो लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल दोनों का प्रॉब्लम है। दे डोंट नो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल। आज आप देखिए कि in agribusiness sector the 2 words are much more important. One is peak season and another is lean season.
अब देखते होंगे कि टॉप जो स्कीम बनाई गई थी, नाउ द नेम इज ग्रीन, टॉप में 3 क्रॉप्स लिए गए थे, वन इज टोमेटो, वन इज ओनियन एंड वन इज पोटैटो। ये तीनों भी क्रॉप का आप स्पेक्ट्रम देखोगे प्राइस का 20 पैसे किलो से लेके 200 रुपीज केजी तक जाता है। कोई भी लॉजिक इसके लिए आज तक तैयार नहीं हुआ है, बिकॉज हमारा फार्मर जो है डिमांड सप्लाई गैप अच्छी तरह से जानता नहीं है। और ये जो सारी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज पेरिशेबलनेस। हमारा जितना भी फल है, सब्जी है, इसका प्रॉब्लम जो है कि ऑल दीज आर, उनका आयुष्मान बहुत कम है, फ्रॉम 1 day to 8 days। और पॉइंट ऑफ कल्टीवेशन एंड मार्केट में वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत डिस्टेंस है। आपने कभी सोचा है कि जो एप्पल हम खाते हैं, इट इज कम फ्रॉम श्रीनगर, फ्रॉम जम्मू और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। कम से कम 2000-2500 किलोमीटर का प्रवास करके एप्पल हमारे यहाँ आता है। सो फॉर एप्पल देयर इज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक सिस्टम, for other minor fruits and vegetables there is no organized vegetable and fruit की logistic की system है। तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट में ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड उसका शेल्फ लाइफ एनहांसमेंट, इसके बारे में देयर आर n number of opportunities. Out of that, today we are going to discuss with very innovative concept which will connect farmers, rural youths, semi-urban youths and urban youths and your international consumers. This is very innovative concept developed by my company Udyog Prerna, and the name of the concept is community dehydration. Community dehydration. See, dehydration is very old technologies. We know from our grandmother, second type of grandmother. See, आप देखिए कि डिहाइड्रेशन ये जो टेक्नोलॉजी है, आज भी हमारे यहाँ अमला का सुपारी मिलता है। मेरे ख्याल से लास्ट 50 years हम लोग वो कंज्यूम कर रहे हैं मेरे लाइफ में। आमला सुपारी इज नथिंग बट डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। आप पापड़ खाते हैं, इट इज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। आप मेथी खाते हैं सूखी हुई, इट इज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स, बट इट इज सनड्राइड। अब देखिए कि ये सनड्राइड इज अवर ट्रेडिशनल मेथड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल एग्रो कमोडिटीज। यहाँ पे सनड्राइंग का एक बड़ा ड्रॉबैक जो रहता है, कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत सारे हैं, एंड कंटेमिनेशन की वजह से दैट विल नॉट अ सेफ फूड। सो दैट आपको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक ड्राइंग पे जाना होगा, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक ड्राइंग पे जाना होगा। यहाँ पे व्हाट इज डिहाइड्रेशन? इट इज रिमूवल ऑफ वाटर from any agro produce without losing its nutritional properties। कौन सा भी सब्जी या फल में से हमें पानी निकाल के लेना है, लेकिन वो पानी निकालते टाइम हमें उसका न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है। वी आर नॉट लूजिंग एनी न्यूट्रिशन वैल्यूज। दिस इज द टेक्नोलॉजी। अभी अगर देखिए कि वी कंसिडर स्पिनच, पालक जो है, it is very simple crop from farmers aspect। 30 to 35 days में वो क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्पिनच इज वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ ऑफ ओनली 1 or 2 days। डिहाइड्रेशन पालक का करना है, इसका मतलब ऐसा है कि आपको पालक में जो 92% पानी है,
पालक में वाटर का परसेंटेज 92% है। हमें क्या करना है, वो पानी धीरे 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 स्लोली रिमूव करना है विद हेल्प ऑफ मशीन्स। और ये पानी का परसेंटेज फ्रॉम 92% आपको 7% एज पर लॉ लेके आना है, फ्रॉम 92 to 7%। 7% पानी का परसेंटेज लो होने के बाद दैट वेजिटेबल कैनॉट एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकता है, लेकिन पानी ही नहीं है तो ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं डिजोल्व होगा तो आपका जो वेजिटेबल है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा। उसके साथ में जब पानी का परसेंटेज बिलो 7 है तो जो एंजाइम्स उसमें है उसका रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, एंड आपका जो डिहाइड्रेटेड पालक है उसका शेल्फ लाइफ 1 साल तक जाएगा। See, the process is very simple. Only some technology you have to understand. और ये पालक ड्राई होने के बाद उसके जो मेजर एप्लीकेशन जाएंगे, पहले वो सूप में जाएगा। डाइट फूड में पालक यूज कर सकते हैं क्योंकि पालक में बहुत अच्छा आयरन कंटेंट है। और सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो है, पालक से आपको कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, ग्रीन नेचुरल कलर विच इज हैविंग वेरी हाई वैल्यू। तो सिमिलरली आपके पास में जो भी प्रोडक्ट सरप्लस तैयार हुआ है जिसका मार्केट में दाम नहीं है, वो आपको डिहाइड्रेट करना है। वो डिहाइड्रेट करने के लिए एक सिंपल सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको हम लोग डिहाइड्रेटर बोलते हैं। The minimum capacity of the equipment with respect to tomato or bottle gourd or mango is 200 kg input। 200 किलो मटेरियल वो ड्रायर में आपको बिठाना है। नॉर्मली आफ्टर रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर और वाटर आपको 10% रिजल्ट मिलेगा। मतलब फ्रॉम 200 kg you will get the finished product either 10% or 7% depend upon the agro produce. So from 200 kg you will get either 20 kg or 14 kg जिसका शेल्फ लाइफ कम से कम 6 months एंड ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक जा सकता है, डिपेंड अपॉन पैकेजिंग एंड स्टोरेज फैक्टर्स। आज आप देखिए कि किसान के पास में जब एक्स्ट्रा टोमेटो है, एक्स्ट्रा ओनियन है, एक्स्ट्रा लौकी है, ये सारी चीज एक ही सिस्टम में हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं। एक ही सिस्टम में हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि द कंसेप्ट ऑफ, बिकॉज आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई एम कंसोलिडेटिंग द थिंग्स कि कम्युनिटी डिहाइड्रेशन, ये मेरा कंसेप्ट और ये उद्योग प्रेरणा का प्रोडक्ट ऐसा है। बेसिकली लास्ट 10 years में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने काम करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का बहुत बड़ा नेटवर्क ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में बनाया गया है, लेकिन एफपीसी बन गया, उनको आगे क्या करना है पता नहीं है। तो माय कंसेप्ट इज आई एम प्रोमोटिंग अ वेरी सिंपल मॉडल जिसमें देयर आर 3 कंपोनेंट्स। वन इज मोबाइल कलेक्शन वैन्स। मोबाइल कलेक्शन वैन्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में आपको टाई अप करना है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कम्युनिटी डिहाइड्रेशन का मॉडल देना है। यहाँ पे जो भी उसके 100 मेंबर 200 मेंबर्स है, उसमें से एक फार्मर ने 1 एकड़ जमीन का क्रॉपिंग पैटर्न एज पर प्री डिसाइडेड बाय एफपीसी करना चाहिए। हार्वेस्टिंग का टाइम टेबल फाइनल हो जाएगा जस्ट लाइक शुगर केन। ये मोबाइल कलेक्शन सेंटर फार्मर का गेट पे जाएगा। इट इज विथ क्वालिटी टेस्टिंग किट। जो मटेरियल आ रहा है हार्वेस्ट करके उसका वो क्वालिटी वही चेक करेगा। जो भी क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से रेट जो फाइनल है, प्री डिसाइडेड रेट है, वो इमीडिएटली वे करने के बाद ऑनलाइन फार्मर के खाते में ट्रांसफर होगा।
ये सारा मटेरियल मोबाइल कलेक्शन सेंटर के साथ में आ जाएगा पीपीसी में, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर जो भी हम डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रहे हैं वहां का क्रॉपिंग पैटर्न और एग्रीकल्चर की डेंसिटी देख के हम फाइनल कर सकते हैं हर तहसील लेना है या एक तहसील में 2 करना है, 4 करना है। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में सोलर टनल ड्रायर खड़ा किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड पॉलीहाउस टेक्निक एंड विद फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन। आपका मटेरियल का वॉल्यूम कम किया जाएगा। 2 it is पालक, 2 it is मेथी, 2 it is कोथिंबीर और बॉटल गार्ड और टोमेटो और कैरेट और कैबेज, एनीथिंग, उसका मॉइस्चर 20% तक लाया जाएगा पीपीसी में। और ये 20% होने के बाद ये मटेरियल विल ट्रांसफर टू द लो टेम्परेचर डिहाइड्रेटर्स, वहां पे वो मटेरियल 7% तक आ जाएगा। ये पीपीसी में एक पैक हाउस का प्रोविजन दे रहे हैं जहां पे मटेरियल का ग्रेडिंग हो जाएगा एंड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मटेरियल जो है उसका टाइप ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन के साथ में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिग बास्केट रहेगा, डी मार्ट रहेगा, बिग बाजार रहेगा, मोर रहेगा, ये लोगों के साथ में या इंडस्ट्रीज के साथ में। क्योंकि आप देखेंगे तो पूना में गिट्स है, चितले है, रसोई मैजिक है, Atul sir, your voice is not audible. Atul sir. Atul sir, your voice is not audible. Atul sir, voice not audible. अतुल सर प्लीज अनम्यूट कीजिए आप एक बार। Atul sir, your आपका वॉइस नहीं आ रहा। वो शायद हमारा वॉइस भी नहीं सुन पा रहे हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Atul sir? Sir, we can't hear you. We still can't hear you.
सॉरी भाई, जब तक हम अतुल साहब का वो टेक्निकल प्रॉब्लम अपलोड कर लेते हैं, अब आई थॉट आई शुड सप्लीमेंट ये, जैसे अतुल साहब बता रहे थे डिहाइड्रेशन के बारे में। ये डिहाइड्रेशन आजकल, इसका पहले तो लोग ने वो सोचा था ये डिहाइड्रेशन क्यों करना है, इसमें क्या यूज है। इसमें तीन चीज हम देख सकते हैं। एक तो हमारा रोज का वो रिटेल मार्केट में भी वो और कंज्यूमर को भी चला जाता है जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। और इसका बहुत जरूरी चीज, जैसे अतुल जी ने बताया, इंडिया में बहुत सारी क्लाइमेटिक वेरिएशन है। जैसे हम देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा क्लाइमेटिक वेरिएशन इतना ज्यादा है। और ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे उन्होंने चार पिलर्स बताया। एक तो बैकवर्ड लिंकेज बताया, ये बोलते हैं प्री हार्वेस्ट, जैसे खेती बाड़ी के बारे में बताया उन्होंने। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्होंने बताया था जैसे खेती से पूरा प्रोड्यूस को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोरेज करना है और उसके आगे कैसे प्रोसेसिंग करना है। और तीसरा चीज है ये फूड प्रोसेसिंग, ये बहुत बड़ा चीज है। इसमें नॉट ओनली फ्रूट्स और वेजिटेबल होता है, जैसे मीट होता है, मछली होता है, हर चीज प्रोसेसिंग करता है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। और चौथा चीज उन्होंने बताया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इसमें इन्होंने बताया तो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के बारे में बताया। इसमें मैंने तो एक थोड़ा सा ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आजकल ये लोग सोचते हैं ये फूड प्रोसेसिंग या डिहाइड्रेशन ये पूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता है और बहुत सारे रिसर्च होता है इसमें, लेकिन इसके पहले, सबसे पहले ये फूड प्रोसेसिंग शुरू हुआ था हमारा फौजियों के लिए। इसके लिए मैसूर में, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया अनंत रामकृष्णन के बारे में, और उनका एक और दोस्त है वो इनके CFTRA करके है मैसूर में, उनका अनंत रामकृष्णन का दोस्त है मिस्टर उमेश। वो दोनों ने साथ में काम करके बहुत सारी चीजें निकाला वहां पे। उसका पूरा टेस्टिंग और जैसे डिहाइड्रेशन करना है वो सब CFTRA में कर सकते हैं। और दूसरा चीज DRL हम बोलते हैं, DRL वो डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी। जैसे हमारा फौजी लोग या कोई लोग साउथ में कोई कोस्ट गार्ड में है, क्योंकि पूरा ये इंडियन ओशन का समुद्र में हमारा देश के लिए का पूरा से सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहे हैं। और दूसरा ये एक तरीके से कश्मीर में और ऊपर कारगिल में काम कर उन लोगों के लिए प्रॉपर प्रोसेस्ड फूड पहुंचाना है, क्योंकि जितना भी फौजी लोग वहां पे है, उन जैसे हम रोज रोटी सब्जी दाल खाते हैं, उनको कैसे पहुंचाना है। इसीलिए ये सबसे पहले शुरू हुआ था ये फूड प्रोसेसिंग। और ये अतुल जी, यू आर बैक इन। Yes, yes. Now am I Right, now audible? you can continue. I was bridging up for you because I've done some work on the food processing area, so I thought I would bridge it up for you due to the technical incident. Now over to you, Atul ji. Right. Okay, okay, no issue, no issue. So I was up to community dehydration pack house. हाँ जी. Am I correct? So Yeah, of course, sir. You are right. after harvesting, the material will brought to pack house where the size and weight wise grading will take place. For any agro produce, for tomato or chili or bottle gourd or anything else, there are some grading standards set by supply chain. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. And only by grading, farmer can add value of minimum 20 to 30%. So size wise and weight wise grading will add the value on an average 25%. And from out of 100 kg, grade 1 and grade 2 are near about 45 to 60%. This material we can transfer to the corporate supply chain or corporate buyers.
And the remaining grade 3 and grade 4, it is not the waste material, but it is small size material that will go for solar tunnel drying. And this after solar tunnel drying, the moisture level from 1992, it will come down to 20%, and then it transferred to controlled atmospheric dehydrator, which are basically low temperature dehydrator. And the end product after the moisture will come up to 7% will be vegetable flakes, fruit flakes, or any type of flowers dehydrated. In the same plant, you can dehydrate any vegetable, any fruit, any herb, any spice, so that this type of setup we can run for 300 days per annum. This collection center and primary processing center will be always handled and run by farmer producer company. And the CFC, that is Common Facility Center, is managed by some private player or SPV, that is Special Purpose Vehicle. उद्योग प्रेरणा का जो प्रयास है, we are making a common marketing platform, क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से ये प्रोजेक्ट को हम जब देखेंगे तो आफ्टर कोविड entire world is divided into only two era, pre-COVID and post-COVID. See, post-COVID इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर इतने साल से बैठा हुआ था, दैट इज चाइना. और चाइना के बारे में चाइना इज लूजिंग फेथ इन यूरोपियन, यूएस एंड अदर फार ईस्ट मार्केट्स. That vacuum should be fulfilled by Indian agripreneurs. हम लोगों को वो भर के लेना है. We are proud. आज देखिए हमारा नेटिव प्लेस से, that is from Solapur district, we are exporting green chili, lemon, bottle gourd, snake gourd to Europe also, not only GCC countries. ये community dehydration is a tool to empower farmers, to generate employment, and we can create a good export of Indian products and catch or grab or importing dollars. So post harvest sector में community dehydration हम तहसील प्लेस में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, गांव प्लेस में कर सकते हैं. इसमें there are 3 major advantage. आपका जो हार्वेस्टेड एग्रो प्रोड्यूस है उसको एक फिक्स रेट मिल जाएगा, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, आपका जो सरप्लस प्रोड्यूस है उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, वहां पे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा बिकॉज एफपीसी इज रनिंग द शो. एंड थर्ड जो है फिनिश प्रोडक्ट जो है, ये फिनिश प्रोडक्ट से सीएफसी में इफ वी डेवलप functional food or nutraceutical products or other value added products, बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए वेट कर रहा है. आज आप देखिए कि फॉर्चुनेटली मेरे प्रोफाइल में आई एम दी फैसिलिटेटर और द मशीन सप्लायर एंड ऑन अनदर एंड आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स. और हमारे यहाँ आज वी कैन नॉट सप्लाई दी ऑर्डर्स. इतना बड़ा पोस्ट कोविड फूड इंग्रेडिएंट का मार्केट आगे आ रहा है. सी इस करके ये प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा दिया है. कामले साहब डिक्की के साथ में कंटिन्यूअस इसके पीछे पड़े हुए हैं. तो जो आपका 1 लाख लोगों को खड़ा करने का जो टारगेट है पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर में, इट इज वेरी इजी बिकॉज आपको हर स्टेप में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है. And by developing such a type of value chain का सबसे बड़ा स्पेशलिटी जो रहता है, एक का एंड प्रोडक्ट दूसरे जो चेन रहती है उसका रॉ मटेरियल रहता है, एंड ऑल पीपल विल ग्रो टुगेदर. तो ये वैल्यू चेन हम क्रॉप पे भी कर सकते हैं.
मैंगो की वैल्यू चेन, चीकू की वैल्यू चेन, लेमन की वैल्यू चेन, कोरिएंडर की वैल्यू चेन, हर एक क्रॉप के ऊपर हम लोग वैल्यू चेन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी डिहाइड्रेशन। सो पैसा रेडी है, नेचर ने हमारे पास में सब कुछ दिया है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, डिकी और सीडबी जैसे फैसिलिटेटर अवेलेबल है। द ओनली लैक्यूना इज एग्रीप्रेन्योरशिप। वहां पे यदि हमने फोकस किया तो हमारा जो इंडिया को शाइन करने का सपना है या स्टैंड अप इंडिया का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है वो बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। जय हिंद। नाउ आई एम ओपन फॉर सम क्वेश्चंस। Thank you, Atul sir, for such a wonderful presentation. May I request the participants to post their queries in the chat box? अगर किसी को कोई query है तो हेलो, हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में कैर, सांगरी और ये जो देश जो सब्जियां हैं, ये पूछिए। और दूसरा हमारे यहाँ अनार पैदा होने लगा है, अनार पैदा होने लगा है राजस्थान में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसका भी जो है, इसका जो है फूड प्रोसेसिंग में इस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट लग पाती है? अतुल सर। अतुल सर, इनका कुछ क्वेरीज है, कैन यू प्लीज एड्रेस इट? Yes, yes, I can address. What I understand, my friend is from Rajasthan और वहाँ पे अनार का भी कुछ खेती आ रहा है, उसके साथ में और भी कुछ वेजिटेबल्स इनके पास में है। माय फ्रेंड, अनार की वैल्यू चेन बनाना बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका अनार का दो टाइप रहेगा, एक आपका स्वीट अनार रहेगा, नहीं तो एक जंगली अनार रहेगा। आपका कौन सा है देख लीजिए। इफ द पोमोग्रेनेट इज स्टेबल यूज वैरायटी, उसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रेडिंग करना है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 आपको इजी मार्केट मिल जाएगा सप्लाई चेन में। ग्रेड 3 का आपको क्या करना है, पैक हाउस में आने के बाद उसका छिलका निकाल के एरियल्स जो है वो एरियल सेपरेट करना है। एरियल आपको वैक्यूम पैक करके सप्लाई चेन में देना है। हमारे यहाँ अर्बन एरिया में अनार खाने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि वो अनार का एरियल्स निकालने के लिए हमको बहुत तकलीफ होती है। तो ये अनार का जो एरियल्स है वो प्लास्टिक या कोई पेपर का कप में डाल के सील करके आप बेच सकते हैं। उसके बाद में जो उसका छिलका है वो छिलका हमारा सोलर टनल ड्रायर में आप ड्राई कर सकते हैं। सोलर टनल ड्रायर में ड्राई किया हुआ अनार का छिलका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्केल में जाता है। और जैसे आपका फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी थोड़ा बड़ा हो जावे तो ये अनार का एरियल के अंदर सीड में ऑयल है, वो ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा है, वो सब हम कर सकते हैं, अनार का वैल्यू चेन बना सकते हैं। आपके यहाँ कसूरी मेथी है, आपके यहाँ कोरिएंडर है, ये फ्रेश लीव्स भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं, सीड्स भी हम बेच सकते हैं, दोनों काम हो सकता है इसमें। थैंक यू। Atul sir, there are a couple of queries in the chat box. First one is, what are the opportunities you are offering in this sector? Like, are you offering a franchisee model or some sort of partnership? Also, what is the estimated cost of such a setup? सी, यहाँ पे दो टाइप का मॉडल मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। इट इज नॉट फ्रेंचाइजी मॉडल, बेसिकली दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। उसमें जो इंडिविजुअल लोगों को काम करना है वो लोगों को कम से कम 15 लाख रुपए का मशीन्स लेना पड़ेगा और प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपका 30 लाख तक जाएगा, जगह छोड़ के किराए पे जगह लेना पड़ेगा। तो कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 30 लाख रुपीज। उसमें इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल, 4 लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा
और ये सारा जो मटेरियल है ड्राई किया हुआ, जो एरिया से लोग आने वाले हैं वो हिसाब से उनको प्रोडक्ट बताया जाएगा, ये आप कर सकते हैं। दूसरा कम्युनिटी डिहाइड्रेशन का जो मॉडल है उसके लिए मुझे एफपीसी और एनजीओ और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई संस्था चाहिए। वो एरिया में कम से कम 100 फार्मर्स को लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 100 फार्मर्स को कनेक्ट करने के बाद जो कम्युनिटी डिहाइड्रेशन का मिनिमम प्लांट साइज रहेगा विथ कलेक्शन सेंटर एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर इज नियर अबाउट 75 लाख रुपीस का प्लांट एंड मशीनरी लगेगा। उसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो रहेगा वो कम से कम 40 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहेगा ऑफ फार्म का एम्प्लॉयमेंट अलग रहेगा। और जो सीएफसी रहेगा उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1.5 करोड़ का रहता है। ये पूरा वैल्यू चेन 2 करोड़ में बैठ जाता है। इसके लिए किसान संपदा में बहुत सारा पैसा है। एक ही पार्टी ने नहीं करना चाहिए, एक ने 75 लाख एफपीसी ने लगाना चाहिए और 1.25 करोड़ का जो है वो प्राइवेट प्लेयर ने लगाना चाहिए। दोनों का कनेक्टिविटी हो सकता है। और हम लोग अभी जो ट्राई कर रहे हैं एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जहां पे पर्टिकुलरली कोरिएंडर, स्पिनाच, बॉटल गार्ड, ग्रीन चिली, टोमेटो, कैरेट, कैबेज और करी लीव्स, ये मोरिंगा लीव्स, ये सारा सेंट्रलाइज परचेस करने का भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। 1-2 महीने में इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं। मिनिमम प्राइस भी उसके लिए हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट फ्रेंचाइजी मॉडल, इट इज इंडिविजुअल मॉडल। हर एक प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट। थैंक यू। Thank you, sir. The next question is from Mr. Ganesh, and he is asking what is the initial investment and what hand-holding support will be provided. सी आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख से इंडिविजुअली कर सकते हैं मशीन्स में, या और हैंड होल्डिंग सपोर्ट इसमें जो बेसिकली है आपका बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको एफएसएमएस का गाइडेंस दिया जाएगा, आपको मार्केट कहाँ पे है, कैसे मार्केट में ग्रैब कर सकते हैं, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है वो बता सकते हैं। और जो भी आपको मैनेजमेंट गाइडेंस रहेगा, टेक्निकल गाइडेंस रहेगा, मशीन्स का जो भी प्रॉब्लम्स है वो 1 साल के लिए फ्री में हम लोग दे रहे हैं। And the next question is, sir, as I understand, every fruit or vegetable should have a particular temperature. Is there any standard plan for the same? सी हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको सिखाया जाएगा, एक रेडीमेड चार्ट बना के रखा है कि आपको कौन सा टेम्परेचर कितना टाइम देना है, उस टाइम आपको क्लोज लूप में जाना है या ओपन लूप में जाना है। एंड फॉर हाई एंड मॉडल हम लोग पीएलसी देने वाले हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा। जो एरिया में यूनिट होने वाला है, जो क्रॉप टारगेट क्रॉप आपको डिहाइड्रेट करने हैं, उसका पूरा टेक्नोलॉजी एसओपी आपको हैंड ओवर हो जाएगा और आपके बंदे को सिखाया जाएगा। Thank you, sir. There's one question, I don't think whether it is related to this or not. He's asking if he got his own bakery shop and he wants to increase his sale. I would request Mr. Sudhakar kindly contact me or our corporate office, and we will try to help you out on the increase of your sale as far as possible. And so the other questions are, sir, somebody has asked, sir, where is market for dehydrated product? How to connect with international market? Okay, it is very good question. See, the biggest buyer of dehydrated vegetable is Indian Army. इंडियन आर्मी को सप्लाई करने के लिए आपको डीआरडीओ का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। डीआरडीओ का ऑफिस में आपका इफ यू आर एमएसएमई तो दे आर गिविंग प्रायोरिटी। With the help of Dicky, you can approach DRDO, get the vendor code, and as per their specification, you can supply the material. Then for export, आपको APEDA का registration लेना पड़ेगा, APEDA का membership लेना पड़ेगा। APEDA is our export promotion council for such type of commodities. APEDA MSME के लिए दुनिया के अलग-अलग international trade show में
आपको लेके जाएंगे, आपका स्टॉल रखेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बायर्स के साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं। Then there are some industrial associations, just like Dicky. There are Asochem, FICCI, CII, World Trade Centers. यहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर मीट होते रहते हैं। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेके बायर सेलर मीट में यू हैव टू पार्टिसिपेट। वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट आपको मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई चेन में धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। पूना में इफ यू विजिट दोराब जी, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। रामदेव बाबा की वजह से आपको लौकी का पाउडर सबको मालूम हो चुका है, आंवला का पाउडर सभी को मालूम हो चुका है, ग्रीन चिली का पाउडर आज रिटेल में बेचा जा रहा है। तो ये रिटेल सप्लाई चेन में भी ऐसा प्रोडक्ट जा सकता है। तो मार्केट और हर साल 30% मार्केट बढ़ रहा है, 30। use Coke. Thank you. Sir, next question is, Mr. Chauhan has plans to establish a food processing plant in Gujarat. He is asking who can help in this regard. Sir, my question समझा नहीं है. Can you repeat, please? He wants to start his own food processing plant in Gujarat. गुजरात इज द हार्ट ऑफ एग्री प्रोसेसिंग। आप गुजरात में कुछ भी कर सकते हैं। गुजरात में आप कहाँ पे हैं? वेस्ट गुजरात में, सेंट्रल में है या राजकोट साइड में है, कहीं पे भी ये सारी फैक्ट्रीज आप कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज शेल्फ लाइफ एनहांसमेंट टेक्निक। आपको मैं इसके आगे जाके बता सकता हूँ। हमारा अच्छा पुलाव रहेगा या बिरयानी रहेगा, ये भी आप डिहाइड्रेट करके शेल्फ लाइफ 1 साल का एनहांस कर सकते हैं। आप फ्लाइट में जो उपमा खाते हैं, इट इज बेसिकली डिहाइड्रेटेड। या दाल चावल जो खाते हैं, पानी डाल के 7 मिनट में देना है। तो एवरी प्रोडक्ट ये डिहाइड्रेशन मेथड से आप बना सकते हैं। तो गुजरात में कहीं भी आप ये सारी चीजें बना सकते हैं। अनदर थिंग, द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिविजुअल पर्सन। आज की तारीख में दुर्भाग्यवश से कैंसर का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। तो कैंसर का केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट रोकने के लिए वीट ग्रास पाउडर बहुत इफेक्टिव है। और वीट ग्रास पाउडर आपका 100 किलो का ड्रायर भी आपने लिया तो भी आपका काम चालू हो सकता है। बैकवर्ड लिंकेज में आप खुद वीट ग्रास कल्टीवेट करिए, डिहाइड्रेट करिए, पाउडर बनाइए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और कहीं भी ये बेच सकते हैं आप। तो गुजरात इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। Sir, I have one question on this model, and there are 2-3 similar questions also that people are asking कि 30 lakh project में कितना area required है, how much space is required, and also I would like to know what is the percentage of ROI on these dehydrated products. जी, नंबर 1, आपका ये 30 लाख का प्रोजेक्ट के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट ये आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया लगेगा। 1000 स्क्वायर फीट, जिसका हाइट आपका मिनिमम 12 फीट चाहिए एज पर लॉ। सेकेंड थिंग, आपको जो पावर लगने वाला है ये 12 kW पावर चाहिए, 3 फेज 12 kW। और ROI जो है आपको 3 साल में मिल जाएगा। इफ यू ब्लेंड द प्रोडक्ट विथ वीटग्रास, ग्रीन चिली, ये 6 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप करोगे तो 3 साल में आपका ROI आराम से, मतलब लोन आपका क्लियर होकर आपका यूनिट प्रॉफिट में आएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको 24 घंटा चलाना चाहिए। ये सिंगल शिफ्ट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप 24 आवर चलाओगे तो आपका हीट वेस्ट नहीं होगा, कंटिन्यूअस चलेगा वो। रात में आपको कोई आदमी की जरूरत नहीं है, आपका ऑटो मोड पे मशीन डाल के आप निकल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये जो 30 लाख जो आपने बताया है उसमें आप ये बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपए की आपकी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। 15 लाख की मशीन है।
हाँ, यानी कि बाकी जो है, यानी कि आपका जो मॉडल है वो 15 लाख रुपए का मॉडल है, यानी कि 15 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड हैंड होल्डिंग आप दे रहे हो। और जो रिक्वायरमेंट है उसको रिक्वायरमेंट है 1000 स्क्वायर फीट, हिज ओन प्रॉपर्टी और रेंटल हो सकता है। इसको आपके हिसाब से 12 फीट हाइट चाहिए और 12 kW 3 फेज लाइट चाहिए। तो ये उसके पार्ट में आता है। जी। तो आपके पार्ट में इसमें जो है वो 15 लाख रुपए की आपकी टेक्नोलॉजी और प्लांट एंड मशीनरी आपकी है। करेक्ट सर। हाँ, बस उसको थोड़ा एम्फोसिस करके जरा बताइए ना। ओके ठीक है। सी, ये 15 लाख रुपया में आपका कटिंग मशीन आने वाला है, आपका ड्रायर आने वाला है, आपका पल्वराइजर आने वाला है, आपका यूटेंसिल्स आने वाले हैं और आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट के पैसे है। हम लोग पैकेज बेचते हैं टोटल। ये 15 लाख में कवर है। अभी आप देखिए कि जो प्रोडक्ट बेचने जाना है वो बेचने के लिए द अथॉरिटी का जो नॉर्म्स है, इट इज FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी है उनके नॉर्म्स है। तो उसके लिए आपको पार्टीशंस करने पड़ेंगे, कुछ एयर कर्टन बिठाने पड़ेंगे, कुछ फ्लाई कैचर बिठाने पड़ेंगे, देन आपको वॉशिंग का कुछ अलग सिस्टम करना पड़ेगा, ड्रेस चेंज करने का रूम करना पड़ेगा, छोटा सा टेस्टिंग किट लेना पड़ेगा, पावर का आपको डिपॉजिट भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए 15 लाख रुपए रखा है। 15 लाख रुपए मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है विथ हैंड होल्डिंग, एंड 15 लाख रुपए ये सारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। तो दिस इज द उसका डिटेलिंग। अच्छा, तो ओके, यानी कि टोटल एक 30 लाख रुपए का आपका मॉडल है। 30 लाख रुपए का ये मॉडल है। इसमें 5 लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मिनिमम। अच्छा, मुझे एक जो बेसिक सवाल जो मेरा है कि क्या जो उद्यमी है वह एक खुद के नाम की कंपनी वो बना सकता है, प्रोप्राइटर? क्या उसके लिए फिर FSSAI को रजिस्ट्रेशन लेना और ये सब ये तो करना पड़ेगा उसको? सर, प्रोप्राइटरी कंपनी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाना ही पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और FSSAI का लाइसेंस भी उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज टू सेल द प्रोडक्ट टू द मार्केट। बहुत सिंपल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ऑनलाइन सारा हो जाता है, बिल्कुल 3000 रुपये में सब काम हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए मतलब FSSAI लेने के लिए भी हमारा टीम पूरा गाइडेंस करेगा, क्योंकि उसका वाटर का टेस्टिंग करना पड़ता है, लेआउट सबमिट करना पड़ता है, मशीन का डिटेल उनको सबमिट करना पड़ता है। ऑनलाइन है, 1 महीने में लाइसेंस आपको बाय पोस्ट आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेल आ जाएगा। अच्छा, ये जो लाइसेंस जो है वो ट्रेडिंग वाला रहेगा या मैन्युफैक्चरिंग वाला रहेगा? ये मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा सर, because you are manufacturing some dehydrated products. It is manufacturing license. ओके। स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट FSSAI लाइसेंस रहेगा। तो ये हर तालुका प्लेस पे हम लोग इसको सेटअप करके तो एग्री एंटरप्रेन्योर्स इससे हम बना सकते हैं। ग्रेट सर, दिस इज द बेसिक आइडिया। अभी जैसे महाराष्ट्र में हमने यहाँ पे जो हमारे मित्र है हनुमंत गायकवाड़ और उनकी BVG नाम की कंपनी है, वो एग्रीकल्चर में भी काम कर रही है। तो महाराष्ट्र में टोटल 365 तालुका प्लेसेस हैं, जिसमें 300 हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वहां पे हम लोग शेतकरी सुविधा केंद्र जो है वो फार्मर्स सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे पेस्टिसाइड रहेंगे, वहां पे फार्म को लगने वाले जो हथियार लगते हैं वो सब रहेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक वाला ट्रैक्टर रहेगा, जो हायरिंग सर्विसेज, जो एग्री सर्विसेज प्रोवाइडर जिसको हम कहते हैं,
तो वो वहां रहेगा। और उसको थोड़ा हम अभी हाईटेक भी बना रहे हैं, तो उसमें ड्रोन सर्विसेज भी ऐड कर रहे हैं, ताकि जो दवा मारनी होती है क्रॉप के ऊपर, तो ड्रोन के माध्यम से जाके दवा मार के आएगा। तो लाइफ वाइज तो ऐसे इसी को कड़ी में जोड़ते हुए हम लोग इसको साथ में इस प्रकार का जो आपका कम्युनिटी डिहाइड्रेशन जो है जी वो जी कर सकते हैं। दूसरी जी बात जी जो जरूर। है, ये एक और थोड़ा बताइए, ये जो वैल्यू चेन है जो है, अभी टोमेटो का वैल्यू चेन कैसे रहेगा, लेमन जो है नींबू, उसका वैल्यू चेन ये कैसे बनेगा, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा आप जरा बताइए। ओके सर, थैंक यू। सी, टोमेटो आप देखोगे तो टोमेटो इज वेरी वोलेटाइल क्रॉप, उसका शेल्फ लाइफ भी बहुत कम है। हार्वेस्टिंग होने के बाद टोमेटो पैक हाउस में आ जाएगा। टोमेटो पैक हाउस में आने के बाद जो 40 ग्राम के ऊपर के टोमेटो जो है साइज में, वेट में, वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कहलाते हैं। उसके लिए बायर फिक्स है, प्राइस भी फिक्स है। राउंड द ईयर 30 रुपीज केजी पे वो माल बेचा जाता है कारपोरेट कस्टमर्स को, सप्लाई चेन को। तो ये बड़ा वाला टोमेटो रहता है 40 ग्राम एंड अबाव। अभी उससे छोटा वाला जो है, मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 में वैल्यू चेन में क्या आ जाएगा कि इनवर्ड मटेरियल आफ्टर ग्रेडिंग विद ब्रांड और B2B ब्रांड बना के वो सप्लाई चेन को दे देना है। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 हम हमारा कम्युनिटी डिहाइड्रेशन में लाएंगे। लोगों को जाम या सॉस या केचप पता है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा वो, आई एम नॉट सजेस्टिंग इन कम्युनिटी डिहाइड्रेशन टू मेक केचप एक्सेट्रा। हम जो बोल रहे हैं, जो आपके छोटे वाले टोमेटोज है, वो टोमेटोज के दो तरीके के कटिंग हो सकते हैं। एक आपका एक टोमेटो का 6 पोर्शन में कट कर सकते हैं, 6 पोर्शन में, अदरवाइज स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये स्लाइसेस या 1/6 टोमेटोज सोलर टनल ड्रायर में 18 घंटा रखना पड़ेगा। उसका मॉइस्चर जो है वो कम होता जाएगा 20% तक। उसके बाद में वो सोलर टनल ड्रायर अपना लो टेम्परेचर ड्रायर में आ जाएगा। वो पूरा डिहाइड्रेटेड टोमेटो का स्लाइसेस बन जाएगा। 1/6 टोमेटो का सारी मेट्रोज में बहुत बड़ा शॉर्टेज है। ये वैल्यू चेन का हाई एंड का आइटम है, जिसमें सारे इटालियन प्रिपरेशन जो है, कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशन जो है, उसके लिए 1/6 टोमेटो लगता है। जो स्लाइसेस बनाई गई है उसका आप पाउडर कर सकते हैं। एंड ये जो पाउडर है, ये आप आइदर खुद बेच सकते हैं, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ दिस पाउडर फर्दर वैल्यू एडिशन आप सूप कर सकते हैं या सीजनिंग के आइटम कर सकते हैं। जितने भी एक्सट्रूडेड स्नैक्स मार्केट में आपको दिखते हैं, उसके ऊपर टोमेटो का जो कोटिंग आता है, फ्लेवरिंग आता है, ये पाउडर है। या आपको रेडी टू कुक का सूप बनाना होगा तो ये पाउडर से बनाया जाता है। उसके बाद में इफ यू मेक द पीसेस ऑफ टोमेटो 4 mm 5 mm के, वो पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स के लिए काम पे आ सकते हैं। दिस इज अगेन अ वैल्यू चेन। और उसके आगे जाके जो टोमेटो पाउडर है, टोमेटो का सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है, आप देखिए कि टोमेटो का जो पिल रहता है, आउटर स्किन जो रहता है, ये आउटर स्किन में लाइकोपिन है। एंड ये लाइकोपिन इज द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर कैंसर मेडिसिन। हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको कहा जाते थे, डेली आपको 1 टमाटर खाना है। इसका मीनिंग अभी समझ में आ रहा है। तो वैल्यू चेन का हाई एंड एटम इज लाइकोपिन। आफ्टर डिहाइड्रेशन जो पाउडर बनेगा, ये पाउडर आगे जाके और एक फैसिलिटी रहती है, द टेक्नोलॉजी नेम एज सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन। सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन में ये जो ऑलियो रेजिन या उसका जो ऑयल है वो निकाला जाता है। बेसिकली इट इज नोन एज लाइकोपिन। दिस इज टोमेटो वैल्यू चेन। और ये लाइकोपिन का आप ऑलियो रेजिन लेके आप डाइट फूड भी बना सकते हैं। और ये डाइट फूड स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए आप दे सकते हैं। वेरी हाई वैल्यू एडेड।
लेमन का आप देखोगे तो लेमन का बहुत मतलब आप हार्वेस्टिंग का और मार्केट का आप साइज देखोगे तो जून से लेके आपको कम से कम अक्टूबर नवंबर तक लेमन का रेट बहुत लो रहता है, कोई मार्केट में पूछता नहीं है। उस टाइम यू डोंट सेल लेमन्स, उसका ग्रेडिंग करिए। ग्रेड 1-2 जो है मतलब जिसका डायमीटर 40 mm 45 mm से आगे है वो आपको सप्लाई करना है ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन में कारपोरेट बायर्स को। उसके बाद में आप पैक हाउस में वो 3 और 4 नंबर का जो लेमन रहेगा उसका आप जूस निकालिए। सिंपल इवापोरेटर प्लान जो पैन रहता है, वैक्यूम इवापोरेटर हम लोग बोलते हैं, 2-2.5 लाख का इक्विपमेंट है, वो बिठाने के बाद वो जूस से पानी निकाला जाएगा, उसका थिक कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा। उसमें शुगर डालिए 18 ब्रिक्स तक, ये आपका शुगर साइरप हो गया लेमन का। उसका सैशेट बनाइए, समर में वो कट करके ठंडा पानी डालिए, आपका शरबत रेडी हो गया। कॉस्ट ऑफ शरबत इज 2.5 रुपीज, जो आप 10 रुपये में 20 रुपये में बेच सकते हैं। अभी जूस निकालने के बाद जो छिलका रखा है वो सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन है। वो छिलका जो है स्टरलाइज करके लेना पड़ेगा, उसका ब्लांचिंग करना है, गर्म पानी में वो 2 मिनट के लिए डिप करना है, उसके बाद में ठंडी पानी में डिप करना है और सोलर टनल ड्रायर में आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसका 2 mm to 5 mm पीसेस कट करना है पल्वराइजर में। दीज आर यूज्ड फॉर टी फ्लेवर। जितना भी लेमन का टी आता है उसमें ये यूज आ जाएगा टी बैग्स में। और उसका पाउडर आप बनाइए, पाउडर सीजनिंग इंडस्ट्री के लिए भी चलेगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फेस पैक के लिए भी चलेगा। पोमोग्रेनेट पिल पाउडर, ऑरेंज पिल पाउडर और लेमन पिल पाउडर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ये लेमन का वैल्यू चेन हो गया। एंड इफ यू हैव गुड इन्वेस्टमेंट और पर आवर 5 टन लेमन इन्वर्ट करने की क्षमता रहेगी तो लेमन का सीड में एक ऑयल है वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड इज 5 टन पर आवर का। दिस इज लेमन वैल्यू चेन। Oh, great, great. Thank you, sir. Thank you very much. जैसे सर ने बताया कि अपेड़ा के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। डिक्की और अपेड़ा ने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं। तो दूसरी बात, सुबह मॉर्निंग में मैं एक वीसी में था जिसमें एशियन कंट्रीज के कुछ बिजनेसमैन के साथ मेरी बात हो रही थी। तो उसमें मैंने वही बात रखी कि भारत का जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर है। दूसरी बात, जो हमारा इंपोर्ट जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि कोरोना के पहले 514 बिलियन डॉलर इंपोर्ट था और एक्सपोर्ट जो है वो हमारा 330 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट था। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा बड़ा है। अभी आत्मनिर्भर भारत में हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो यह मैंने बात रखी। तब जो चर्चा में विषय आया कि चाइना से बहुत सारा एग्रीकल्चर दुनिया को सप्लाई होता है, मगर ये कोरोना के बाद में जापान सबसे बड़ा जिंजर से लेके लहसुन को लेके ये कंज्यूमर है, चिली का कंज्यूमर है। मगर उन्होंने ये तय किया है कि हम लोग अभी चाइना से बिल्कुल नहीं लेंगे। थाईलैंड के कुछ लोग थे, कुछ लोग मलेशिया के थे, उन्होंने भी ये कह दिया कि वहां पे ये जिंजर और ये सब चीजें बहुत इंडिया से जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उन्होंने ये सब लोगों ने ये तय किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, कि चाइना से बिल्कुल हम कुछ नहीं लेंगे। दूसरी बात, एक यूरोपियन कंट्री के भी आदमी उसमें ज्वाइन हुए थे, पर्टिकुलरली फ्रांस के। अभी जो फ्रांस में जो भी कुछ हुआ है एपिसोड, उसके बाद में उन्होंने ये कह दिया है कि हमें बिल्कुल टर्की और बांग्लादेश से हमको बिल्कुल नहीं कुछ लेना है।
तो टेक्सटाइल मार्केट जो है उसके लिए उनके जो सेल्फ है वो खाली पड़े हैं, वो इंडिया को बोल रहे हैं कि आप सप्लाई करिए। वैसे उसी प्रकार जो चाइना के बारे में जो लोगों में जो रोष है वो इतना है कि सुपरमार्केट से लेके सभी इसमें चाइनीज एटम को वो डाउन कर रहे हैं। तो भारत के लिए इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कोप है। और जैसे अतुल जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैत्रेयी ने जाके उनका जो प्लांट है वहां लगाया हुआ वो देख के आई है। तो बिल्कुल हम इसको लेके जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर में और डोमेस्टिक, ये सब को हम इसमें तलाश करेंगे। बस इतना ही मैं कहूंगा। और अतुल जी आप आए, मार्गदर्शन किए हैं। आगे गौतम हाँ, बाकी जो सवाल है वो हम लेके रखेंगे। तो आगे आगे बढ़ाइए गौतम जी। अनिल ओहाले जी भी यहाँ हमारे ज्वाइन हो गए, पुणे चैप्टर के प्रेसिडेंट। उनका भी स्वागत है। आगे बढ़ाइए। अभी कोई एक सक्सेस स्टोरी है ना अभी? हाँ, ओके। Thank you so much. Thank you, Atul sir, for such a wonderful presentation and very knowledgeable. And we are hoping the best in this sector also. And on behalf of Dicky, I can assure you that we will definitely work on this sector, agri sector. Thank you, sir. And Thank you. as you all aware that in this program, Solomon Sankal, we always have two parts. One is a franchisee model and the second is a success story. The success story, in previous success story, we have Miss Rekha Rangaji, who is the proprietor of RR Enterprises. And she is a Delhi Jal Board contractor. May I now request Rekha Rangaji to kindly take over and share success stories with us. Rekha ji, can you hear us? रेखा मैम आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू गौतम सर। पच्चीस सभा में सभी पद्मश्री कामले सर नमस्कार, सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं रेखा, मैं RR एंटरप्राइजेस से दिल्ली जल बोर्ड की कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मुझे मेरे भाई राजेश रंगा, जो आज डिक्की में न्यू मेंबरशिप में मैन्युफैक्चरिंग में है, उन्होंने मुझे बताया। मैंने डिक्की की मीटिंग अटेंड की और मुझे डिक्की की सारी जानकारी मिली और आज मैं डिक्की की मेंबर भी हूँ। डिक्की ने मुझे इस टेंडर के बारे में बहुत हेल्प करी, जिसके कारण मुझे आज ये टेंडर मिला और आज मैं हाउस वाइफ के साथ साथ बिजनेस वूमेन भी हूँ। उसके लिए थैंक्स डिक्की। डिक्की हमेशा हमें नई सोच और नए विचार देता है। जब डिक्की ने हमें नई सोच और नए विचार दिए तो हम क्यों ना कुछ करें, तो उससे हमें हिम्मत आती है। तो उस हिम्मत से मैंने एक नया बिजनेस और स्टार्ट किया है। अभी हाल ही में 2-4 दिन ही हुए हैं। ज़्यादा नहीं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती हूँ। ऑनलाइन ही मतलब प्रोडक्ट बेचना घर बैठे बैठे ही। इसमें मेरा मोटो है कि मैं जितने ऑर्डर लूँ या जितने प्रोडक्ट सेल करूँ उतने ही मैं प्लांट्स लगाऊं, पौधे लगाऊं। मतलब नेचर, अपनी कमाई से अपनी मतलब नेचर को कुछ दूं अपनी तरफ से, ये मेरा भी है, प्लान है अभी। तो और नेचर को सेव करूं। तो बाकी आगे देखो, डिक्की अगर साथ दे तो आप लोग साथ दे तो। थैंक यू सर। Thank you, Rekha ma'am, and we wish you all the best on behalf of Dicky and all the participants. Thank Now, you sir. may I request Mr. Anil Hawale ji, who is president of our Dickie's Pune chapter, to kindly give the vote of thanks.
अनिल सर, you can unmute. अनम्यूट हो नहीं रहा है। हो गया सर। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू फर्स्ट मिलिंद सर। ये स्वावलंबन संकल्प का 18वां कड़ी है आज, और ये जो प्लेटफॉर्म बना है एवरी फ्राइडे डिकी इज डूइंग, इट इज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। और आज की जो अपॉर्चुनिटी है, सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका म्यूट हो गया अनिल सर। यस सर, प्लीज। हो गया, आ रहा है आवाज? यस सर, यस सर। जी जी, यस यस। ये जो एग्रो फील्ड में ये जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कोविड के बाद में आ रहा है, और बेसिकली ये जो बिजनेस बोल करके खेती के बारे में जो अभी नया आवाज आ रहा है सर? यस आवाज आ रहा है? यस यस सर। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आज एक्सप्लेन किया मिस्टर अतुल मार्डीकर साहब ने, तो इसका जरूर हमारे डिकी के मेंबर्स फायदा लेंगे। मैं उनका आभार मानता हूं, मिस्टर अतुल मार्डीकर साहब का, मिलिंद सर का, गौतम विश्वकर्मा जी, मैत्री। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. And, thank you, Honorable Chairman, sir, Atul ji, Anil ji, Maitri ji, and each and every participant. We meet again in our next edition on 19th. We will keep you all posted. Thank you so much. हेलो गौतम जी। Sir? गौतम जी। Yes, yes. सर, ये जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो क्लासेस कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो ज्यादा बेटर है। मैंने ना डिक्की कॉर्पोरेट ऑफिस का नंबर्स अपडेट कर दिया है चैट बॉक्स में। आप एक बार मैं आपको सारे जानकारी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू।